Anshuman, are you here? I am, sir. Pranam, sir. Pranam. Good to see you. Good to see you. Awesome to be here, sir. Ladies and gentlemen, can you all welcome the one and only Anshuman Khaitan? Welcome, Thank you. welcome, Mr. Khaitan. Hi, hello. Hi, guys. welcome back. नमस्कार खेतान भाई कैसे हो Namaskar, sir. वेलकम सर So nice to see everyone here. Welcome, sir. Lovely. Welcome. So you are the reason why I'm here. Inderjeet ji, thank you. Thank you, sir. You know, I've seen all of your videos on the YouTube. Very impressive. I live in Rudrapur. You live in Rampur, and you are very impressive. Full of energy, and I love it. Meenu, please इनका note करिए नाम number. I want to go and meet him next time. I'm there. I'll be there on the 9th. Sir, should we start? Yes, please. Let's just start. Just 1 second, Anshuman. Just a second. Anshuman, आप unmute कर लो जरा. जी, sir. Very nice. So Yes. I'm audible, everyone, right? Yes. Awesome. So, sir and everybody, good morning. Before I start, Sachin, I want to show this photo of the BCI alumni. आज सुबह हम लोग सचिन मीनू सचिन लॉग ऑन किया कि नहीं? एक मिनट, वो उनको एडमिन राइट्स नहीं. कौन है ये? सर सचिन सर, मेरा डीएमई. आप जानते तो हैं सचिन मावी को? सचिन, यस यस यस, सॉरी, एक मिनट. हाँ जी. So this is my BCI alumni with Vishal Malhotra and all of us. Today morning we were at Chandni Chowk at 8 o'clock. पिछले 5 साल से मेरी टाइगर ग्रुप साथ है और हम सिर्फ वहां पे आज, हम तो वैसे स्टडी ग्रुप हैं बट हफ्ते में महीने में एक बार सोशल भी करते हैं. तो आज सोशल हमारा सुबह चांदनी चौक में था, सुबह 8 बजे. सर हम सब वहां पे मिलके कचौड़ी पकौड़ी और वो रजनीश के शोरूम में श्री कृष्णा वाले के यहाँ पूरा हमने धमाल मचाया सर. 2 घंटे सुबह पार्टी करके फिर यहाँ पे आया हूँ मैं. So I just wanted to share this, sir. चलिए बंद करिए please. I wanted to thank you, sir, because now that the plant is on autopilot mode last 4 years, it has really freed up my time so I can follow my passions. I have become a full-time holistic life coach and I am an options trader, which has become a major portfolio for my family. मैं कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी में बात करूंगा. So please bear with me, everyone. I'll just see the settings for a second. Just 1 sec. Yeah, that's it. Just give me another second. Hi everyone. My name is Anshuman Khaitan. मेरे परिवार के 2 स्कूल नोएडा में है, द खैतान स्कूल के नाम से, और मेरी एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट रामपुर में है. मैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चलाता हूँ, मेरा भाई स्कूल संभालते हैं. And me and my brother did this course together in February 2019. We graduated. आप सोचिए, एक तरफ स्कूल वाला, एक तरफ रामपुर में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट वाला, दोनों ने ये कोर्स एक साथ किया. Let me clarify. I have come here to share my experience only. So everything I am saying, I am 100% experienced over the past 48 months. I have come here today to share my joy and happiness with all of you as to how my life has transformed after doing this course. It is not just about the profits doubling. That is truly a byproduct of the autopilot. मगर अब मैं अपनी पूरी जिंदगी एक भरपूर तरीके से जी रहा हूँ. Whether it is my relationship with my parents, my friends, my staff, my brother, my students, my whole life has changed. I will explain how my life was before the course, then how I implemented the course, and कैसे कोर्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेरी पूरी जिंदगी पर्सनल और बिजनेस में चेंज हुई. Many of you will be able to relate to what I am going to share about my life. Of course, not so drastic, but कुछ आप जरूर relate कर पाएंगे. Let me tell you about my life and what it was till 19 April 2018 when I attended RJ Sir's one-day course. My life was completely wasted. It took a 180-degree turn, but for that we had to do whatever Sir said without applying our mind. I was running a chemical plant and I hated running the plant. It is a manufacturing unit and it is a mundane, uninteresting, boring business in which we produce sulfuric acid. 23 साल की उम्र में मैंने एक शटडाउन यूनिट को बंद किया, करोड़ों रुपए के डेट रीपे किए,
उसको बहुत सक्सेसफुल बनाया। और उसके बाद भाई जब पेट भर गया ना और पैसे आ गए तो मेरा सारा मोटिवेशन ही चला गया काम करने के लिए। I had no motivation to work क्योंकि पैसा ही पैसा था। When I look back today, I can say I had stagnated in my mind and was just leading a heavily consumptive life. मुझे सिर्फ एक नेशनल लेवल गोल्फर बनना था, अपने सिर्फ हॉबीज परसू कर रहा था। मैं सिर्फ पार्टी करता था, हॉलिडे करता था और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं भाग रहा था। मैं 45 दिन में एक दिन अपनी फैक्ट्री जाता था और आज भी 45 दिन में एक ही दिन अपने फैक्ट्री जाता हूं, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंड द रीजन फॉर माई एब्सेंस आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। द रीजन फॉर माई एब्सेंस टुडे, माई एब्सेंस टुडे इज एक्चुअली माई प्रेजेंस ओवर देयर। मेरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट है दैट आई एम रनिंग, प्रोड्यूसिंग 120 टन ऑफ एसिड एवरी डे। स्टोरेज कैपेसिटी केवल 5 दिनों की होती थी। फिलॉसफी ये था कि अगर माल नहीं बिक रहा है या रॉ मटेरियल नहीं है तो भाई प्रोडक्शन को कट कर दो। पूरे प्लांट में देयर वाज कंप्लीट mayhem। द एंटायर प्लांट वाज बीइंग रन ऑन जुगाड़ टू द एक्सटेंट कि जब मैं ये कोर्स लॉन्च करने के लिए गया तो मेरे यहाँ पे जो जनरल मैनेजर साहब थे उन्होंने बोला, सर आप ये कोर्स काहे को लॉन्च कर रहे हैं, कौन है ये राहुल जैन, बड़े आए बड़े गए, हम तो ये नहीं लॉन्च होने देंगे, हमारा पूरा फैक्ट्री जुगाड़ से चल रहा है, आप काहे को एक कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं। दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। Anyone could purchase anything at any time, but it had to be sanctioned by me sitting in Delhi, who used to visit the factory once in 45 days. Can you imagine? Indents 2-3 महीने तक दराजों के अंदर रहती थी। हर एक चीज केवल एक इमरजेंसी के तहत चलाई जाती थी। There was no system of HR. Anyone could come and go from the factory. The GM had no idea कि फैक्ट्री में कौन जा रहा है कौन आ रहा है, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क सब जगह था। मैं ये चैट को थोड़ा बंद कर रहा हूं, आई एम गेटिंग लिटिल डिस्ट्रैक्टेड बाय द चैट। आप लोग चैट ऑन रखिए प्लीज, आप लोग चटियाते रहिए। सो व्हाइल डूइंग डिस्पैच लेबर डिसाइड करती थी कि आज कितना टन माल किस पार्टी को किस और कितने क्वांटिटी में और कौन सी क्वालिटी, कमर्शियल ग्रेड या बैटरी ग्रेड, वो डिस्पैच लेबर डिसाइड करती थी कि कैसे जाना है। There was literally no laboratory. Entire testing was done by the peon of the general manager. आप सोचिए 330 डिग्री पे सुपर हीटेड स्टीम है, 1000 डिग्री में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर बर्न हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, और वहां पे पियोन साहब जनरल मैनेजर ने उनको ट्रेन किया कि कैसे टेस्टिंग करना है। कैन यू इमेजिन? सारे पेमेंट्स रिलीज होते थे एज पर द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द अकाउंट स्टाफ एंड आफ्टर टेकिंग माय ओन अप्रूवल सिटिंग इन दिल्ली। आई रिमेंबर एक बार मैं दिवाली के बीच में था किसी के कार्ड्स पार्टी में, मुझे बाहर आना पड़ा, मेरे पास फोन आया कि सर जनरेटर में डीजल नहीं है। तो साहब लोगों ने दो ड्रम डीजल के अरेंज किए, मार्केट में गए, पैसा जुगाड़े, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, रात के बीच में दिवाली के दिन दो ड्रम डीजल का लोड किया डीजल के साथ, और फिर उन्होंने जाके प्लांट को चालू किया। I feel like crying when I think how I was running the plant without any planning of anything. सारा एफर्ट यही रहता था कि हम प्लांट को किसी भी तरह से बस चला के रखे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। प्लांट में कभी पेंटिंग नहीं हुई थी, और खाली इमरजेंट सिचुएशंस में, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में रंधा मार के, रेड ऑक्साइड मार के हम काम चलाते थे। मेरे पास यहाँ पे लोग हैं जो 30 साल से काम कर रहे थे, और सब ने अपने अपने MIS यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रखे थे। मेरा रिलेशनशिप मेरे स्टाफ के साथ ये था कि ये लोग कामचोर हैं और उनको लगता था खैतान साहब महाचोर है। Then my brother pushed me to attend the one-day course of Rahul Jain ji on the 19th of April. इतना बुरा सिचुएशन क्यों था? सॉरी सर, इतना बुरा सिचुएशन क्यों था? अभी वो समझाऊंगे सर बाद में। सर हमें किसी ने धंधा करना सिखाया ही नहीं सर, और हमने जो भी सीखा रगड़म पट्टी करके या बाप दादा से सीखा, जिनको किसी ने और नहीं सिखाया था तो उन्हीं के सिस्टम्स चले जा रहे थे। हाथ पैर जोड़ के सबके सामने ऐसे खड़े रहते थे, परचेज जिससे करते थे उसके सामने, कस्टमर के सामने, अपने एम्प्लॉइज के सामने, गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने। हर आदमी अपने व्हाइट पेपर एक अपने पॉकेट में डाल के चलता था, पता नहीं कब वो अपना रेजिग्नेशन दे देगा।
It was a very scary situation. It was a very scary way of running the thing, sir, because nobody had taught us the science of business. Business is a science. Nobody had taught us that. They just said, तुम तो मारवाड़ी है, अच्छा खानदान में पैदा हुआ है, धंधा करना सीख लोगे. अरे कैसे सीख लोगे आज के competitive दुनिया में? Anyway, sir, this was the reason I feel. At the cost of repeating again, let me tell you that autopilot and doubling of profits is a very small benefit of doing this course. What RJ sir cannot explain to you are the intangibles of this course, like the rishta with your parents, your spouses, your siblings, आपके दोस्तों के साथ किस तरह से चीजें improve करती हैं. जो love, appreciation और oneness आपको अपने टीम के साथ मिलती है, जो improvement of life of the people who are dependent on you, including your personal staff at home. Oh my God, last but not least, whatever your interests are in life. जो सर कह रहे थे ना अगले 5 साल क्या करना है, मैंने तो लिखा भाई गोल्फ करना है, फिशिंग करना है और मुझे सिर्फ हॉलिडे करना है और कुछ नहीं करना. पैसा तो चाहिए ये सब करने के लिए, बट वो थोड़ी ना कमाना है, मुझे तो ये करना है. So last but not least, whatever your interests are, what you have left behind, all the things you were passionate about when you were a single guy or a lady and you did not have any responsibilities, all those things will come back to you and you will be able to do hundreds of more things. Like I, being an industrialist, have suddenly switched over to becoming a holistic life coach and an options trader. It's unfathomable. मैंने सर का 4-day कोर्स अटेंड किया, उस टाइम 8 महीने का कोर्स किया, वो अटेंड किया. 32 में से 31 क्लासेस मैंने अटेंड किए और 30 क्लासेस मेरे भाई ने अटेंड किए. उसने 2 मिस किए, मैंने 1 मिस किया था. और मैंने सर के 10 मैनिफेस्टेशन क्लासेस भी किए. I attended all 10 manifestation classes of everywhere I could find his course. मैं कुछ चीजें अब शेयर करता हूं कि पिछले 4 सालों में मैंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया इस कोर्स में. आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है ना बॉस? जस्ट शो थम्स अप लाइक दैट. मुझे भी तो इंकरेजमेंट चाहिए. ग्रेट. I stayed in my factory from January 2019 till December 2020 from Mondays to Friday. मैंने 34 नए लोगों को हायर किया. मैंने 32 पार्टियां की अपने लोगों के लिए, मेरे सिर्फ स्टाफ के लिए. और खूब सारे मैंने लंगर, मीनू व्हाट यू कॉल इट, व्हाट वी यूज्ड टू हैव, भंडारास. Lot of bhandaras we had. रामपुर में भंडारा बोलते हैं. Lot of bhandaras we had arrived with live singer from Delhi, tentage and full catering in every party. मैंने अपना रॉ मटेरियल स्टोरेज स्पेस 48% से इंक्रीज किया और अपने फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज को मैंने 315% से इंक्रीज किया. I never paid any heed to profit or running the business. I only worked towards the implementation of this course and what RJ sir said. जो भी RJ sir ने बोला मैंने उसको गॉस्पेल ट्रूथ के जैसे लिया. कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की और बिल्कुल क्वेश्चन किए बिना मैंने उन चीजों को एज अ साइंस इंप्लीमेंट किया. मुझे याद है सर ने बोला था कि अपना दिमाग घर पे छोड़ के आना और मैं जो कहूं उसी को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन द 8 months दैट सर ट्रेन्ड मी. मेरे पूरे 25 स्टाफ 2 बारी मैनिफेस्टेशन का क्लास सर का अटेंड किए हैं दिल्ली में. द ओनली थिंग इज आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग माय पीपल विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट and honor, and everything seems to have changed. I believe the same blood which flows through me flows through them, and they feel the same pain I feel and aspire for the same things I aspire for. We are all spiritual beings having an earthly experience. Kunal ji, it is increased 4 times my profit. We have 86 checklists and FMSs up and running. Sir, FMSs और checklist दिखाएं कुछ? हाँ दिखाओ. Guys, are you interested in seeing his systems? रामपुर जैसी जगह पे बैठ के क्या सिस्टम बनाए. से याद है 2018 में रामपुर was ranked the worst town in India. TOI के फ्रंट पेज पे निकला था जब मैं काम कर रहा था वहां पे. सचिन, मीनू, अब आप लोग दिखाइए. सर क्या दिखाएं इसमें? मीनू,
Meenakshi, are you there? Sir, can she unmute? I don't know if she can mute herself, unmute herself. वो शी इज नॉट, एक मिनट रुको, मीनाक्षी ना इज नॉट लुकिंग, शी इज नॉट देयर। एम मीनाक्षी के नाम पे तो नहीं है। MI होगी सर, एक बार देखिए ना प्लीज, मैं एक बार पूछता हूँ। हाँ, मीनाक्षी इज देयर। एक सेकंड। हाँ, नाउ आई हैव अनम्यूटेड हर, आई पुट हर ऑन को होस्ट। मीनाक्षी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, गुड टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। सर उन्हीं को ले आइए सामने। दिस इज नॉट माय फोटे, मुझे तो पता भी नहीं है सर, बस बना के छोड़ दिया मैंने, अब यही लोग देखते हैं, 2-3 साल हो गए। उनको क्यों बोल रहे हो दिखाने को? सर क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा सर, मैं अपने EM के अलावा शायद 1 या सवा घंटे पूरे फैक्ट्री में काम करता हूँ महीने में, हफ्ते में, वो भी 15-15 मिनट 2 दिन मैं मार्केटिंग और उसमें बिताता हूँ, HR में 15-15 मिनट ईच, तो 1 घंटा वो हो गया। और बाकी सर यही लोग देखते हैं, मैं बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं देखता हूँ फैक्ट्री का सर। इट इज ऑल ऑन ऑटो पायलट ना, एवरीबडी नोज द KRAs, एवरीबडी हैज देयर जॉब्स। वो खाली डेट एक्सटेंशन के लिए मेरे पास भेजते, वो पावर मैंने किसी को नहीं दिया है। तो मुझे एक्चुअली गूगल चलाना नहीं आता सर, तो यही लोग, मैंने तो एक्सेल पे बना के अपने DME को दिया, उसने पूरा छापा। सर मैं नहीं देख सकता हूँ सर, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है सर। सर जब मेरा प्लांट 120 टन पे चल रहा है, 2 महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक है, जीरो स्टॉक है, डेटर 60 लाख रुपए पे है, तो मुझे क्या जरूरत है देखने की सर? टच वुड, व्हाई शुड आई सी एंड वेस्ट माय टाइम एंड वेस्ट देयर टाइम? वेरी नाइस। ये क्या है? CRM डिस्पैच। CRM क्या करती है? CRM डिस्पैच की मीनू, वेयर आर यू? आई कांट सी यू मैं सर। यही उसे हूँ सर। स्पॉटलाइट पे ले आइए मीनू को। सर जो भी शीट बताएंगे मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये CRM डिस्पैच क्या है? या CRM डैशबोर्ड खोल लो अगर ये अच्छा, देखना है तो। CRM टोटो दिखा दो। यस सर। DME MIS का लड़का है जो सारा का सारा ये काम, सारे जो ये गूगल शीट्स बनाता है और करता है। तो ये क्या है? सर इस शीट में जो भी मटेरियल हमारा डिस्पैच हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका डेली का डिटेल होता है। तो इसमें अभी जो है 16 दिसंबर में आप देख रहे हैं, एक हमारी टैंकर जो है ये निकलने वाला है। इसके आगे का पूरा टैट हमने बनाया हुआ है कि गाड़ी कितने बजे फैक्ट्री में आई है, गाड़ी का नंबर कौन सा है, कितनी क्वांटिटी जाने वाली है, डिस्पैच अप्रूव हुआ है नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी उसका जो है वो सारा। और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, चालान नंबर वगैरह, बिल नंबर जो भी है इसका, SOC वगैरह। एंड इसके स्टेप शुरू हो जाते हैं, तो किस पर्सन को कौन सा टास्क करना है, कितने टाइम पे करेंगे, किस चीज के थ्रू करेंगे, लाइक गूगल फॉर्म के थ्रू करना है, उनको फोन कॉल करना है, मैसेज करना है, वो सारा डिटेल। चलान का इमेज खोल के दिखाना। दिखा दो, ये ये वाला लेटेस्ट दिखा दो। ये रियल टाइम डेटा है? जी सर। ग्रेट। ये है चलान, और ये चलान भी सब यहीं पर चढ़े हुए हैं? जी वेरी गुड। तो इसको बंद कर दो। तो मतलब अगर कोई चलान भी बनता है तो वो FMS में ही चढ़ जाता है? जी सर। और PCs को चेक करती है प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की, जो चालान में डिटेल्स दी हुई है वो एग्जैक्ट यहाँ पे फिल हुआ है नहीं, अगर कहीं मिसमैच होता है तो वो फिर उस स्टेप के जो भी पर्सन है उनको हेल्प टिकट रेस कर देती है। अभी इसका स्टेटस ये है इस व्हीकल का, टैंकर का। सचिन आगे दिखाना कहाँ तक पहुंचे, कंप्लीट आई थिंक। तो ये सारे स्टेप्स हैं FMS में जी जो। सर, अभी ये 9th स्टेप पे आया हुआ है और इसका टैग जो है वो 3:52 पे। तो यहाँ पे अभी 2 टैंकर हैं जिनको फिल होना है। अगर ये राइट टाइम पे नहीं फिल होगा तो ये रेड हो जाएगा और CRM का स्कोर जो है वो माइनस चला जाएगा। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा देखती है कि सारा काम हो रहा है कि नहीं। जी जी जी। टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरा। ये एसिड टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? यस। तो ये एसिड टेस्ट भी अगर होता है ये तो जी सर, जो लैब में है वो इसको टेस्ट पूरा चेक करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। इसको बंद यहाँ कर। पे भेज देते हैं। गुड। तो ये सारा का सारा सब कुछ इसी में है, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन जितना भी हर स्टेप का हो रहा है वो भी जी चेक कर सर। सकता है भी। जी तो ये ऑडिट भी हो सकता है, यहाँ इनवॉइस भी जी है, सर। रिपोर्ट भी है, कब जाना है कब करना है, सारा का सारा है। और ये अभी आपका ये लाइव चल रहा है, 16 तारीख आज है, और ये जी 52 मिनट पे अगला स्टेप होना है। राइट सर। और 3:37 वाला स्टेप हो चुका है।
जी सर। ये 12:33 पे हो चुका। हाँ जी सर। वेरी गुड, इसको बंद करिए। गाइस, ये एफएमएस समझ में आ रहा है आपको? सर ये टैंकर लाइव है अभी फैक्ट्री के अंदर जो अभी गई है। तो ये अभी टैंकर अभी भर रहा है, तो इसको अभी आप दिखाओ कौन सा है वो दिखाया था सर अभी। अच्छा हाँ whatever sir, I'm not, this is why I don't interfere sir. मत इंटरफियर करो, मैं जरा लेट मी, क्यों काम की चीजें हो जाएंगी इसकी। ओके, अब ये सीआरएम हो गया, ये हो गया। नीचे जाना, ये पार्टी वाइज डिस्पैच है। कोई गूगल फॉर्म है जो आप खोल के दिखा सकते हो पहले? ये सर एम्प्लॉय इन आउट का दिखाएं सर, या उसका गनमैन का दिखा देते हैं सर? गूगल फॉर्म, ये सर गूगल गनमैन का दिखा देते हैं। गनमैन का दिखा दो। ये सर हमारी फैक्ट्री में जो गनमैन है वो राउंड पे जाते हैं रात में, उसकी सारी डिटेल्स इसमें है। तो ये हमने चेक लिस्ट है, वहां पे रामपुर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए हमने हिंदी में और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बनाया हुआ है। तो जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो लोग हिंदी में इसको देख लेते हैं। ये ये उनके पे दिया हुआ है। ये राउंड सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर ये लोग देखते हैं कि किस एरिया पे इनको जाना है, और वहां पे ये सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये लोग इसको फिल कर देते हैं एवरीडे, और इमेज फोटो क्लिक करते हैं फोन से और सबमिट कर देते हैं। अपनी फोटो भी बना भर के भेजते हैं। हाँ जी सर, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे डेली दिया हुआ है इनको कौन सा स्टेप करना है, और वहाँ ये लोग कोई भी फोटो अपनी जो है वो क्लिक करके भेजते हैं। इसको पीसी चेक करती है कि फोटो ठीक से आया है नहीं आया है। और टाइम इसमें हम लोग यहाँ पे नीचे सर आप देख रहे होंगे टाइम यहाँ पे शो हो रहा है और डेट, तो कोई किसी एक फोटो को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये 12 तारीख को 8:28 पे इसने ये फोटो खींची है। जी सर। तो ये पता लग जाता है कि ये यहाँ पर असली में गया था कि नहीं। राइट सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेटेस्ट है इनकी कोई लेटेस्ट दिखाना सचिन कल वाले। कल का कुछ है? हाँ, 15 तारीख का कुछ दिखा 15 दो। तारीख का ये दिखाओ। ये 15 तारीख, नीचे जाना। ये 15 तारीख को 8 बजे, अच्छा, एक सेम सेम टाइम पे ये घूमता है ये। ये इनका स्टेप हमने बनाया हुआ है कि फर्स्ट जो राउंड है वो कितने बजे स्टार्ट होगा और सेकंड कितने बजे होगा। उसके बीच में हमने एक फोटो, एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में वो हमने 10 मिनट्स का गैप रखा हुआ है, और एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच में 40 मिनट्स। ये क्यों बनाया ये सर होता ये था, ये रात में ड्यूटी में ये लोग आते थे और कई बार ऐसा होता था कि ये लोग सो रहे होते थे और ये बोल देते हम रात राउंड पे गए। और कैमरा के साथ ये होता है कि कई बार कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए अब हमने इनका एक शीट बना दिया जिसमें ये लोग 8:30 के अराउंड अपना टास्क शुरू करते हैं, और उसमें 6 राउंड इनके हैं, 6। तो अब ये लोग जो जहां जहां जाते हैं, जैसे जैसे करते हैं, हिंदी में गार्ड रामपुर पे खड़ा हुआ, रामपुर वाला गार्ड, वो सारा का सारा जितने भी चीजें कर रहा है वो सब के सब यहाँ आ गया स्क्रैप यार्ड में। इनसाइड फोटो स्टोर नंबर जी सर। 6 वाला दिखाना। स्टेप नंबर 6, इनसाइड फोटो ऑफ स्टोर ऑफ सचिन नंबर 2। यस सर। 6 स्टेप। छठा स्टेप। जी। तो ये स्टोर के अंदर इसने फोटो खींची है। ये खींची जी। के रात के 2 बज के मतलब 59 मिनट्स पे। जी सर। वेरी गुड, इसको बंद कर दीजिए, सबको बंद कर दो, इसको और इसको। मेन मेन्यू में आ जाना। ये आपकी एम्प्लॉय इन आउट चेकलिस्ट को दिखाना जरा। यस सर। एम्प्लॉय इन आउट चेकलिस्ट क्या है? ये इस सर जो भी एम्प्लॉयज सर आ रहे हैं उनके टाइमिंग्स के लिए है, उनका फोटो खींचा जाता है और कौन कितने बजे आया था, और इसमें से ही ओवर टाइम पता चल जाता है कि कौन ओवर टाइम कर रहा है, किसकी जनरल शिफ्ट की ड्यूटी है। एक और मिनट। यस तो ये मतलब ये आपका सिक्योरिटी गार्ड फोटो खींचता है? ये सिक्योरिटी में डिपार्टमेंट में वहां पे जो भी होते हैं सुपरवाइजर वो फोटो खींचते हैं इनका, और ये में भी है एंट्री हो रही है, बायोमेट्रिक भी हो 16 रहा है। तारीख और 16 तारीख को 5:34 पे इसने एंट्री मारी है। जी सर। वेरी गुड, इसको वापस जाना। तो ये मतलब जो आ रहा है और जा रहा है उसका सारा हो जाता है, और ये बंदे का नाम आ जाता है यहाँ पर। जी सर।
और फ्रिस्क्ड एंड फाउंड क्लीन, मतलब इसको वो इसकी सर कुछ लोगों के जो सामान है जो अंदर फैक्ट्री में काम करते हैं उनके चेकिंग होती है, तो वो वहां पे वो लोग लिख देते हैं कि वेरी थिंग इज वेरी। क्लीन। आप बायोमेट्रिक्स यूज करते हो कि सिर्फ ये यूज करते हो? जी सर, वो भी यूज कर रहे हैं, साथ में ये भी है, तो इससे हमारे एचआर डिपार्टमेंट को काफी इजी हो जाता है यहाँ से भी, और ओवर टाइम वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बायोमेट्रिक किसी रीजन से खराब हो गया, कुछ हो गया, तो ये हमारा चल रहा है। वैसे भी रजिस्टर भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके ग्रेट, वापस जाना। अब ये एम्प्लॉय इन आउट व्हीकल फैक्ट्री रनिंग, ये क्या है व्हीकल फैक्ट्री सर रनिंग? इस फैक्ट्री में जो व्हीकल है वो पहले क्या होता था कि कोई भी कहीं अपनी मर्जी से ले गया, कुछ डिटेल नहीं होता था, कितना डीजल पेट्रोल का है वो भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब एवरी डे जब भी व्हीकल फैक्ट्री से बाहर जाती है तो हमने एक क्लॉक बुक बनाया हुआ है, उसमें वो मेंशन कर देते हैं कि पर्सनल काम से कोई जा रहे हैं बाहर या कोई ऑफिशियल काम से कोई जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं उस व्हीकल में वो लिख देते हैं, वो एरिया का नाम लिखते हैं जहाँ वो जा रहे हैं, जिस टाइम बाहर जा रहे होते हैं, ये सारा ड्राइवर फिल करके दे देते हैं, और इसको सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पे लिख देते हैं। ये अगर एरिया ड्राइवर से देता है, ओपनिंग किलोमीटर भी भरा हुआ है, आगे हाँ जी, जाना। हाँ, सच हाँ, राइट, ओपनिंग किलोमीटर, इन टाइम, क्लोजिंग किलोमीटर, कितने किलोमीटर भागा, कितने किलोमीटर गया, और वो सारा यहाँ नंबर आ जाता है। जी ये सर, ऑयल भी और एवरेज सब आ जाता है यहाँ पे। 2 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर गया। जी वेरी गुड। तो आपकी गाड़ी भी अगर कहीं जाती है वाती है, उसका हर किलोमीटर यहाँ पर नोट हो जाता है। एवरी टाइम सर। वेरी नाइस। ओके, वापस जाना। गाइस, ये समझ में आ रहा है आपको कि इज दिस गोइंग थ्रू योर हेड? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ये सब चीजें प्रॉब्लम होती हैं आपको कंपनी में कि नहीं? ये प्रॉब्लम होती है कि हिसाब नहीं है, मालूम नहीं कितना, कोई बोलता है मैं ले गया, नहीं ले गया, गार्ड आया, गार्ड नहीं गया। ओके, हेल्प टिकट दिखाना। ये आपके हेल्प टिकट्स हैं। जी सर, यहाँ फैक्ट्री में कोई भी पर्सन किसी भी एम्प्लॉयज को हेल्प टिकट रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। आपने, किसी ने पूछा था हमको कि अगर 2 लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को काम देना है तो वो ये वाली शीट है उसकी। हाँ जी सर, तो एक कोई रेज करते शीट्स हैं, में हमारे हेल्प टिकट रेज हो रहे हैं वो भी, और सेम अगर किसी डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन को हेल्प टिकट रेज करना है तो इसके थ्रू ही होता है सारी फैक्ट्री में। ग्रेट। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आखिरी वाला है वो आप अपार अग्रवाल ने अनिल को भेजा हुआ है ये कि अरे रजिस्टर इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने ये भेजा था कि काम नहीं कर रहा है, और इन्होंने 16 तारीख को भेजा है, 18th में इसका प्लान था। आगे दिखाना सचिन। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वापस जी जाना। जी उस ऊपर वाला जो है, डियर सर प्लीज इन्फॉर्म दैट व्हाई द आउट टाइम ऑफ सूरज पाल वाज नॉट फिल्ड इन द एम्प्लॉय इन द आउट चेकलिस्ट ऑन सो एंड सो। तो जी ये गोविंद सैनी जी पूछ रहे हैं सुरेंद्र कुमार कश्यप से कि भाई आउट टाइम क्यों नहीं भरा। जी सर, वाह, मजे आ गए, मजे। इन्होंने एचआर को हेल्प टिकट रेज किया है। मीनाक्षी, ये जो इतनी अंग्रेजी सॉरी है बेटा। ये लोग खुद लिख के देते हैं? जी सर। ये ये गोविंदा खुद लिख के देता है इतनी अंग्रेजी, नहीं या सर, हमने इसका हमने प्रोफार्मा बनाया है? जी हम लोगों ने इसका एक पीसी एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है, क्योंकि क्या होता अच्छा, है पीसी छोड़ के चले जाते हैं तो दूसरा पीसी आएगा तो उसको विद इन 1 डे सब चीज पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या काम करना है। हमने ये सारा फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, तो पीसी को हर एफएमएस और चेकलिस्ट में उसको पता है उसको क्या काम करना है। अगर उसकी जगह कोई दूसरे भी आ रहे हैं तो उनको एटलीस्ट हर चीज सामने क्लियर होती है। मैं एक वेरी पीसी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ बीच में। एक बार वापस, नहीं वापस चले जाइए, 1 मिनट, गो बैक फॉर अ मिनट, गो बैक टू द मेन थिंग। हाँ, नीचे जाइए, आईएमएस दिखा दीजिए जरा, इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल या किसी चीज का। आईएमएस कैसे मैनेज करते हैं आप? गाइस, आर यू इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस? यस, नो, और शुड आई, मैं जल्दी जल्दी करके खत्म करूं कि मैं दिखाऊं आपको? ओके, यू वांट टू सी इट, ओके। तो ये वही वाली शीट है जो मैंने आपको दी थी। मैंने आपको जो शीट दी थी ये वही वाली है। आप अगर वो वाली शीट का फॉर्मेट देखोगे, ये देखोगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कंजम्पशन, रिटर्न बैक, मैक्स लेवल, क्लोजिंग स्टॉक, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये हो रहा है। सर ये आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा पूरा टैली अब इससे मैच होता है।
ये टैली से नहीं मैच होता। टैली वाले दौड़ दौड़ के आते अकाउंट्स वाले की सर मैचिंग करा दो, क्योंकि नहीं सर, हमारे यहाँ पे इतना तगड़ा है ये। नहीं सर हर फैक्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्लोजिंग स्टॉक का। चाहे वो टाटा हो चाहे वो अंबानी हो, कितना भी ऑटोमेट कर दो, कितना भी आप उसमें वो सैप लगा दो, दिस इज द ओनली सिस्टम विच इज सो एक्यूरेट दैट इवन द अकाउंट्स गाइस कम एंड टेल अस कि सर हमें क्लोजिंग और ओपनिंग आप अपने सिस्टम से दे दो। क्योंकि हम साल में 1 या 2 बार उसकी एक्चुअल फिजिकल ऑडिट जब कराते हैं तो फिजिकल ऑडिट इसी सिस्टम से मिलता है। तो अब जो हमारे टैली वाले हैं, वो इस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, ये सिस्टम टैली के हिसाब से नहीं चलता। माइन इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, येट बैलेंस शीट तक जो डेटा जाता है वो इस सिस्टम से निकल के आता है। वेरी नाइस। और ये जो इसमें डेटा कौन भरता है, कितना परचेज हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ? ये स्टोर डिपार्टमेंट से भरा जाता है सर। हर वेरी गुड। डिपार्टमेंट का अलग अलग है। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं क्या, बहुत हाई लेवल के एमबी लोग हैं? नहीं सर नहीं, ये सारे रामपुर से ही हैं। सर राम 17-18 हजार 20 हजार रुपए के एम्प्लॉइज हैं मेरे। कुछ लोग तो रामपुर ग्रेजुएट में भी कहाँ नहीं। मिलेंगे सर, कुछ ग्रेजुएट भी नहीं है, कहाँ से मिलेंगे सर रामपुर में। और वो लोग ये भर लेते हैं? जी सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये वो लोग जो स्टोर इंचार्ज है, जो स्टोर का बंदा है, वो भर देता है इसको? जी सर। तो स्टोर का बंदा भर देता है कितना परचेज हुआ और कितना कंजम्पशन हुआ हाँ जी सर। और कितना रिटर्न बैक हुआ। जी सर बिल्कुल सारा शीट ऑटोमेटेड हो। वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट। इसको बंद कर दो। आईएमएस देख ली, सबको समझ में आ गया थोड़ा बहुत? सर जुगाड़ दिखाए। हाँ, एक मिनट, धीरे धीरे करते हैं जरा। इन्वेंट्री जुगाड़ चेकलिस्ट, ये क्या है? सर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ना हम लोगों को मतलब काफी मैन पावर चाहिए होता था। तो ये सर ने बाइक के ऊपर में ही एक जुगाड़ बनवाया है। और सर हमें उन्होंने बोला था फोकलिफ्ट चाहिए, अब फोकलिफ्ट 9 लाख रुपए का था, हमने 70 हजार रुपए का नया यामाहा खरीदा, उसके पीछे ये लगाया, 7-8 हजार रुपए लगे, मेरे 80 हजार रुपए में जुगाड़ तैयार हो गया। आधा टन माल अब इसके ऊपर जाता है। पर जुगाड़ का भी पूरा चेकलिस्ट है, ऐसे नहीं इसका दौड़ भी हमने सकता। मेंटेनेंस का बनाया हुआ है कि एवरी टाइम। ये क्या है डॉक्यूमेंट? मेरे को हिंदी नहीं आती, आपको थोड़ा ये क्या है ये क्या है? ये सर क्योंकि बाइक है तो इसका हम लोग को सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सारा रखना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए हम लोग के पास कि कभी कभी आउट ऑफ लाइक फैक्ट्री के बाहर भी जाती है, कुछ सामान लेके आती है, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए होता है। जो लेके जा रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, और इसकी हर सर्विसेज बार ये सारे स्टेप्स करके जाता है और सब हिंदी में है, क्योंकि आपका ये गूगल। हाँ ये फिल करेगा तो उसको सारा हिंदी में ही हमने दिया हुआ है। एक मिनट नीचे जाना। तो ये जुगाड़ जब जाता है तो इसमें 45 पॉइंट्स हैं जो वो भर के जाता है। हाँ जी सर, वो एवरीडे दिन में एक बार इसको फिल कर देते हैं, किसी भी सर टाइम वो। दिस इज अ मेंटेनेंस, सर दिस इज अ जी मेंटेनेंस हाँ, चेकलिस्ट। एवरी डे उनको फिल करना है। जिस दिन भी अगर वो नहीं फिल करेंगे उस दिन उनका स्कोर माइनस में चला जाएगा। और इसके लिए इसको वीक में एक बार और चेक करते हैं, कोई भी जो इनके इंचार्ज हैं वो जाते हैं, वो चेक कर लेते हैं। इसमें भी हमने सेम डे का क्लोजिंग किलोमीटर और कितना ऑयल हमने इसमें फिल किया, वो सारी डिटेल्स बेस में आ जाती है। इसका जहाँ पे भी रखा जा रहा है उस एरिया की सफाई हुई है नहीं हुई, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी हुई। वाह, ऊपर जाना। 45 मतलब रोज इस जुगाड़ के 45 पॉइंट्स हैं चेक होने के। जी सर। और ये सब हुआ है ये लोग करते हैं जुगाड़ के ये पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है सर कि वो उसने अगर खाली कभी भी ऐसे गूगल फॉर्म फिल कर दिया, इसको कभी भी जाके कोई सीनियर चेक कर सकता है अचानक। वेरी गुड, इसको बंद करिए, लेट्स गो आगे। नीचे जाना। लाइसेंस एफएमएस शीट, परचेज एफएमएस, यार वो परचेज। कपिल देव भी है सर हमारे पास एक। हाँ, एक सेकंड। परचेज एफएमएस, परचेज पेमेंट ट्रैकिंग। परचेज एफएमएस दिखा दो, आपकी परचेज जो होती है। जी तो ये जो है, फॉर एग्जांपल ये बेंड है 3 इंच का जी जो सर। बेंड है। तो ये बेंड 3 इंच का जो बेंड है, ये इसकी परचेज का इसके इंडेंट आया जी क्या? करो 3 इंच के बेंड, एक बेंड अगर 3 इंच का है तो वो भी शीट पे चढ़ा हुआ है। सब चीज सर, जितनी भी फैक्ट्री में खरीदी जाएंगी सब सारी चीजें इसमें आएंगी।
ओके, आगे जाना इसमें। ये क्या है कि ये इंडेंट इज अपडेटेड ऑन गूगल फॉर्म, वेंडर सर्च एंड क्वेरी करनी है। परचेज डिपार्टमेंट चेक करता है लास्ट डेट परचेज प्राइस। इसको खोल के दिखाना जरा, लास्ट मटेरियल परचेज्ड। ये क्या है? ये सर कंपैरिजन करते हैं तो लास्ट परचेज का वो सारा डिटेल इसमें यहाँ पे जो भी हमारे परचेज डिपार्टमेंट से हैं वो लोग यहाँ फिल कर देते हैं, फिर ये अकाउंट ऑफिस में भी जाता है, वहां से चेक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही वेंडर से ले रहे हैं, बार बार उसी से क्यों ले रहे हैं, तो वो हमारा ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं कि किस कंपैरिजन करते हैं कि कब कहाँ किससे लिया गया था, किसने क्या रेट दिया है। एक बैंड के लिए भी? सब चीज के लिए सर, A to Z जो भी चीजें आ रही है फैक्ट्री में सबके लिए सेम प्रोसीजर है, किसी को भी बाईपास नहीं करते हैं। अगर कोई वेरी इमरजेंसी है तो जाना। तब हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत इमरजेंसी आ जाती है तो। अदरवाइज हमारे यहाँ वैसे इमरजेंसी कुछ नहीं होती क्योंकि IMS के थ्रू सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ ऊपर ये जो लिखा हुआ है वेंडर लिस्ट एज पर PO, वेंडर लिस्ट एज पर कोटेशन, ये दिखाना। ये आपने वेंडर लिस्ट पूरी बना रखी है यहाँ पर, जी ये क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन देगा। जी तो अगर ये आइटम ये वाला है तो वेंडर का नाम ये है, बेसिक रेट ये है, पर्सन का नाम ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। जी वाह! तो आपको जो जो चाहिए वो सब यहीं पर पड़ा हुआ है। जी सर, और मटेरियल कोड दिया हुआ है, कोड के हिसाब से वो सारा डिटेल हमने डाला हुआ है इसमें। वेरी गुड। PO डिटेल खोलना जरा एक बार। सर ये तो बैक एंड डेटा एक तरीके से है। अच्छा, ये छोड़ दो, वापस लिस्ट पे आ जाओ, मेन FMS पे आ जाओ। ये तो उसकी सपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा। हम्म। वेरी गुड। ये तो जो जो परचेज होता है आपकी कंपनी में, वापस जाना फर्स्ट कॉलम पे, इसी में। तो कनेक्शन पाइप हो, वाटर टैंक का अलार्म हो, ऊपर जाना। तो कुछ भी अगर आपका होता है वो सारी, ओल्ड धोती खोलो जरा। ये पुरानी धोती है, उसने खरीदी है, उसका भी ये फॉर्म भरते हैं? हाँ जी सर, वाह! ये खोल के दिखाओ। इवन व्हाइटनर वगैरह अगर कुछ चाहिए तो वो भी सारा डिटेल है। पुरानी धोती भी अगर खरीद रहे हैं तो जी उसका रिक्विजिट फॉर्म FMS पे चढ़ता है। जी पूरा। तो ये पता रखता है कि ये हो गया। और धोती कितने की आती है? धोती तो 10-20 रुपए के शायद। तो 10-20 रुपए का आइटम भी अगर खरीद रहे हो तो उसका भी जी मतलब सर। हिसाब किताब है। वापस जाओ शीट सर पे। मेरा प्लांट करोड़ों रुपया का इतना बड़ा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट एक 5 रुपए के स्पाइडर के वजह से बंद हो जाता था। स्पाइडर एक छोटा सा रबर का चीज है, यू कैन नॉट इमेजिन। और अब हम कितना कितना उसका स्टॉक रखते हैं, हर एक चीज का स्टॉक रखते हैं, और हर एक चीज अब 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का आइटम, इट हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस। नाउ यू आस्क मी व्हाई डू आई नॉट इंटरफेयर, व्हाट कैन आई इंटरफेयर इन दिस, व्हाट कैन आई डू, आई डोंट इवन नो हाउ दिस रन्स। आगे जाना इसमें। तो इसमें परचेज डिपार्टमेंट का ये है, कोटेशन रिसीव्ड है, चेकिंग हो गया, कंपैरेटिव हो गया, इसका नेगोशिएशन हो गया, अप्रूव्ड एंड कंपैरेटिव अपडेशन ऑफ गूगल फॉर्म। ये खोल के दिखाना। ये अप्रूव्ड एंड कंपैरेटिव इमेज क्या है? ऐसे। ये इतने सारे लोग चेक करते हैं इसको। जी सर। यस। ये आप कौन से शहर में हो? हार्वर्ड में हो कि रामपुर में? रामपुर सर। माई, हम राहुल जैन जी के रामपुर में हैं। ये 12 तारीख को इतने लोगों ने चेक करके इतना हिसाब किताब किया है तब, और उसके बाद भी FMS पे चढ़ा है ये। जी सर। वापस जाना गाइस। एक धोती के लिए ऐसी चेकिंग चाहिए आपको अपनी फैक्ट्री में या दुकान पे या वेयर हाउस पे? ओके, गो बैक। रिश्ते FMS क्या है? सर सर आप एक्सप्लेन करेंगे मैं करूँ? सर रिश्ते
अंशुमन, रिश्ते होता है जितने सर कि जितने भी लोग बाहर से गवर्नमेंट यूपी है, तो जितने भी बहुत सारे गवर्नमेंट लोग हैं जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो हमने उसका नाम ये अच्छा रिश्ते वाला है सर। दिस इज एवरी ईयर यू हैव टू गो एंड गिफ्ट पीपल गिफ्ट्स ऑन दिवाली इन यूपी। प्रथा है हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। तो हमने ये रिश्तों का एक चेकलिस्ट बना दिया है। यही है ना मीनाक्षी? ये जी सर। तो Yes, इसमें sir. ये होता है सर कि then why are you जितने asking भी me to ऑफिसेस explain? I हैं don't जो even know हम लोग what this is. Just you explain. अच्छा, तो ये वो है जिनको आपने होली दिवाली करना है। जी सर। अच्छा, वापस जाना। और दूसरा क्या कहते थे जो रिश्ते, वो क्या है? वो अच्छा, अतिथि कब सर जाएंगे? अतिथि तुम कब जाओगे। ये क्या होता है? सर ये वो होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे फैक्ट्री आ जाते हैं, हम तो बड़े बाबू हैं दिल्ली में बैठे हुए, पता नहीं चलता है। तो अगर कोई भी आदमी आता है, उसने एग्जैक्टली किससे मिला, क्यों मिला, क्या फोन नंबर था, ईमेल आईडी था, वो कौन है, और उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। जी। आगे जाना इसमें। ये कभी कभी तो सर पहले एंड से के आते हैं, कभी ये नहीं आते हैं, अचानक आ जाते हैं। तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट हेड हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, वो लोग एक यहाँ पे अपना इसको फिल कर देते हैं गूगल फॉर्म से। एंड देन उनके जाने के बाद जब वो आए थे तो कौन कौन प्रेजेंट था उस दौरान, उनका नाम मेंशन होता है। वो लोग एक पेपर में साइन भी कर देते हैं। उनके साइड से कोई सजेशन होता है या कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किया, उसकी भी डिटेल इसमें आती है। बाय रिश्ते फैक्ट्री पर्सन, ये विजिट रिपोर्ट दिखाना। जी सचिन इस चेकलिस्ट का नाम है सर अतिथि तुम कब जाओगे। वो अजय देवगन का एक पिक्चर था, तुम कब आओगे। तो इसमें यहाँ जो है जो उनका फोन नंबर, कौन कौन थे, कितने बजे आए, कब गए वो लोग, और वहां पे जो लोग थे उनका हम लोग जो प्रेजेंट थे वहां पे उनका हमने साइन किया हुआ है सारे लोग। ऊपर अगर जाना। सजेशन देते हैं तो वो भी हम इस पे मेंशन करते हैं। वेरी गुड, उसमें ऊपर लिख दिया अदिति तुम कब जाओगे फॉर्म। हाँ जी सर। और ये सब हाथ से भरते हैं, जैसा भी भरते हैं, जो जो वहां पर खड़ा हुआ है वो बना लेता है। ओके जी सर। ग्रेट। और उसके बाद ये गूगल फॉर्म से फिल होता है। तो ये हम लोग को पता होता है कि किस डिपार्टमेंट से किस डेट में, किस ईयर में कितने लोग आए थे, उनका फोन नंबर क्या है। अगर कोई पर्सन ट्रांसफर भी हो जाता है तो भी वो सारा इसमें हम लोग का मेंशन रहता है फिर। समझ गया, समझ गया। ओके, गो बैक। मेंटेनेंस एफएमएस दिखा दो जरा। यस हाँ मैं दिखा। गाइस, आपको समझ में आ रहा है? ये गूगल फॉर्म वगैरह जितने लोग भरते हैं, ये लोग सब अपने फोन से ही भर लेते हैं। मीनाक्षी, जी आपके सर। जो जितने गूगल फॉर्म भरने होते हैं लोगों ने, वो सब अपने फोन से ही भर देते हैं। जी सर, सारे लोग फोन से ही फिल कर रहे हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये क्या है? ये मेंटेनेंस रिपोर्ट है। व्हाट्सएप इमेज ऑफ डूअर करना जरा। व्हाट्सएप इमेज टू, ये कौन सा है? ये सर मेंटेन किया। लाइट बदलनी थी, जी। मतलब बिजली, एक बिजली का बल्ब बदलना था। जी सर। क्या बात कर रहे हो? सर हमारे यहाँ जो भी टास्क है हम लोग का सारा, वो चाहे छोटी सी छोटी चीज हो, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फोटो खींच के डाला हुआ है। अगर ये ट्यूबलाइट बदलनी है, उसकी फोटो खींच के डालते हैं। जी सर, की क्या चीज चेक होनी है। तो कई बार ऐसा होता है ये लोगों ने कोई आगे 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 जाओ। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं सर कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि होना है, बट अगर कुछ टाइम उसको डिले कर सकते हैं तो कर लेते हैं। वो जो लिखते हैं फिर जाके जो भी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको चेक कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो हमारे बहुत लाइक बल्ब हो या कोई भी बहुत छोटी सी छोटी चीजें, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, इसको एक मिनट बंद। तो सारी चीजों की जो मेंटेनेंस होती है फैक्ट्री में, कहीं भी मेंटेनेंस होती है, सब होता है। और इसमें टैग भी दिया हुआ है, 4 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे में हो जाना चाहिए। जी सर। वेरी गुड, और वेरी गुड। हमने जो भी एफएमएस और शीट बनाया उसके लिए उस डिपार्टमेंट के सारे लोगों के साथ बैठ के मीटिंग किया। प्रोसीजर सारे सेम है जो होता था, बट इसको हमने सारा ये एफएमएस पे और चेकलिस्ट पे निकाल के रख दिया। मतलब वो प्रोसीजर वैसा ही था, मगर उस सबको डॉक्यूमेंट कर दिया।
हाँ जी सर, तो उनके लिए इजी है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है अपना, सारी चीजें जैसे एफएमएस में आ गई हैं, सबको पता है मुझे इतने टाइम के अंदर ये काम करना है, अब कोई चीजें डिले नहीं होती, तो हम लोग का स्कोर भी काफी अच्छा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सारा ऐप पे है, गूगल फॉर्म पे है? सब गूगल फॉर्म पे है सर। कुछ गूगल फॉर्म पे बन रहा है, कोई ऐप कुछ नहीं है? और अगर गार्ड वार्ड के पास या किसी के पास वो नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है तो? सर बहुत कम लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो हमने वो डिपार्टमेंट में एक फोन प्रोवाइड कर दिया है। जनरली तो सारे लोगों के पास फोन है, अगर जैसे सिक्योरिटी है तो उनको हमने अपना फोन प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, वेरी नाइस, लेट्स गो बैक। अलग अलग होते हैं, तो एक ही फोन उस डिपार्टमेंट में रखा हुआ होता है। गुड गुड गुड। ये एचआर का है, जी प्री सर। फॉर्म है, ऑनबोर्डिंग फॉर्म है। जब कोई ज्वाइन करता है उसको ऑनबोर्डिंग उसकी होती है, जी। इंडक्शन होती है। ऑनबोर्डिंग एफएमएस दिखा दो कोई एक। तो ये इनका सीटीसी ब्रेकअप है जो नया आया है। जी। ओके। और ये प्रूफ सीवी उसका डाला हुआ है, प्रूफ ऑफ सैलरी डाला हुआ है, और जी सर। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे यहीं चढ़े हुए हैं। लिंक दिखाना जरा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एज पर एचआर फॉर्म। तो उसके सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी कॉलेज की सारी कॉपियां सब यहीं पड़ी हुई हैं। सब चीजें हैं। वेरी गुड, गो इसको बंद करो। अभी सर ये एफएमएस और चेकलिस्ट के बाद हम लोग किसी भी एम्प्लॉय के थ्रेट पे नहीं है कि कोई छोड़ के चला जाएगा। अगर वो जा रहा है तो फिर हम उसको उसकी मर्जी जाने देते हैं, कई बार रोकना पड़ता है, बट ऑन। जाने। तो वो ओके। हमारे सारे एफएमएस में पीसी एक्सप्लेनेशन है, और सारी जितने भी एफएमएस है वो इतना डिटेल्स में है कि कोई भी नया पर्सन आता है उसके लिए मुश्किल नहीं होता ये सारी चीजों को देखने के लिए। हमारे यहाँ स्टोर इंचार्ज जो आए थे वो विद इन 2 days में वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। उनको बस एक दिन बैठ के बताया और वो उन्होंने अपना सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर लिया था। ओके, वेरी नाइस। तो ये एग्जिट एफएमएस, लीव एफएमएस, सैलरी मेकिंग कैसे करनी है, एचआर का डैशबोर्ड क्या होता सच नहीं पता दिखाऊंगी। है क्या ये? ये सर अभी क्या होता था कि कंपनी में जैसे सर अभी बहुत ही कम जा रहे हैं, महीने में एक बार कभी गए, तो वो डेली इंफॉर्मेशन नहीं आती थी। कई बार किसी को छोटी सी चोट लग गई या कुछ हुआ, तो हम लोगों ने अब उस चीज को सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी को इंजरी तो नहीं हुई, आपस में किसी एम्प्लॉय ने फाइट तो नहीं किया, या कहीं से कोई आया था, किसी का इंटरव्यू हुआ था, कोई वेंडर या कोई भी पुलिस वगैरह आई, या कई बार ऐसा होता है रात में बाहर कोई चोर वगैरह आए तो ये लोग फायर करते हैं, लाइक, तो उसमें। क्या होता है सर, जैसे मैं फैक्ट्री में, आई I have nothing over there to do. I just go there to relax. So I mean, the thing is that because I'm not there at all, तो कोई आता है जाता है ना, कोई खबर नहीं देता था, तो मैंने अपने हिसाब से मुझे एक चेकलिस्ट बना दिया, मुझे ये सारी पॉइंट चाहिए। तो फिर मीनू और सचिन ने बोला सर आपको तो ड्राइव खोलना भी नहीं आता है, अल्टीमेटली आप हम ही से ऑडिट कराओगे, क्यों आप ये चेकलिस्ट बना रहे हो? एंड द ट्रूथ इज that when she opened this right now, I was going to ask her कि ये कब बना और ये क्या। I actually don't even see it. I don't know why I got it made, but she sees it. And if there's any red flag, then she will tell me. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। इसको बंद करना है, एक मिनट। तो आप क्या कह रहे हो, आपको गूगल ड्राइव, गूगल नहीं आता आपको? So, आप मीनू सचिन बताओ। No, It's sir. laughable, sir. It's really अभी 2 दिन पहले ये लोग बोल रहे थे सर प्लीज ऑन तो करना सीख लीजिए। It's really embarrassing. आप सब छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें फोन करते हैं। I don't know, sir. व्हाट्सएप पे इमेज मंगवा लेते हैं, बट गूगल शीट नहीं ओपन Ah. करते। I don't have the time. I've lost complete interest, sir, in running the factory because I'll tell you the truth. God be with me. It's beautiful factory. It's my whole life, but I have no work. What should I do? I'm very frustrated with the factory, so I don't look into it only. These people do it. I've Okay. really literally handed it over. And sir, you know the strange thing is, I'll tell you अभी मीनू कितनी फ्री हो गई है। पिछले 1 साल से एक ईएम का एक स्कोर नहीं आया इसके पास, इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो ये सारे मुझे दूसरे चीजों में हेल्प कर रही है। सारे लोगों का सही स्कोर आ रहा है। अच्छा, सब। एक मिनट नीचे सर जाओ। हमारे यहाँ पे अगर 3% से कम है, -3 से कम है, तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है। मतलब -3 से कम वालों का, -3 से कम वालों का
आप कहते हैं ना -10 होना चाहिए, -3 से कम वालों का इंक्रीमेंट नहीं होता है। दे हैव टू हैव परफेक्शन। दिखा सकते हैं हम MIS स्कोर हमारी? नीचे जाना, एक मिनट, MIS पे जाओ, पहले नीचे चले, जस्ट गो डाउन ऑन दिस शीट। सर मेरा भी अच्छा रिवीजन हो गया सर, आज मैं तो भूल ही गया था ये सब। यस सर। हाँ, नीचे जाना जरा। नीचे आपके पास ये सब है, नीचे HR का है पूरा डिपार्टमेंट इस पे, और फिर ये सेफ्टी का पूरा डिपार्टमेंट इस पे है कि सेफ्टी कैसे करना है। यस सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज आपका तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है। और नीचे जाना, ये दीज आर 80, ये 95 चेकलिस्ट है, 95 प्रोसेसेस हैं। जी यस 86 सर। 86, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको बंद करना भी। सो गाइस, डज दिस गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट हाउ, मतलब ये जब आपने शुरू किया था अंशुमन, तो आपको सिस्टम बनाना आता था? ये सब आपने जब शुरू किया था तो कितने सिस्टम के साथ शुरू किया था? शुरू में कितने सिस्टम थे? आज तो 86 सिस्टम चल रहे हैं, बट आपने जब शुरू किया था तो आपके पास कितने सिस्टम थे? सर जब मैं आपके कोर्स में पहली बार आया था तो 6-8 महीने के बाद मैं, एक जेंटलमैन आए थे स्टेज पर जो वन थिंग वाले जो आपके स्टूडेंट हैं, and I was sitting in the front row and Vikas Garodia was sitting with me and I put my head on his shoulder and I started howling. It was because it was 6th or the 7th month of the course and we had not completed even one checklist. And I said, Vikas, कैसे होगा यार? And he said, तू ना वरी मत कर, एक दिन तू स्टेज पे खड़ा होकर सर का स्पीच देगा। सर मैं 6ठे महीने तक हमारा नहीं बना था सर, ये बहुत, इट इज नॉट इजी। हमें एक्चुअली एकलव्य बनना होगा, नॉट अर्जुन, तभी आप सक्सेस पाओगे इस कोर्स में। इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स, योर लाइफ विल बिकम झिंगालाला इफ यू डू इट। 6 महीने बाद भी शुरू किया तो भी आपका पूरा हो गया? 100% सर, 100%। विदाउट माई EA and DME, you have to have a very good EA and DME. EA is Okay. main thing in this, Very no nice, doubt. very nice जी, very nice. Sir, should I carry on, sir? Yes please, yes please. Meenu, is there anything else that you want to say, or Sachin? जी सर, एक चीज मैं जरूर बोलूंगी सर कि आपने अंशुमन सर को तो फ्री कर दिया, साथ में मुझे भी कर दिया। मेरे पास काम नहीं होता बिल्कुल भी। मैं आई थिंक इस साल में शायद 5 या 6 बार रामपुर गई हूँ बस, तो मैं बिल्कुल सारा टाइम फ्री हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास करने को। Very good, very काम good. तो कीजिए। प्लांट फुल ऑटो पायलट पे चल पड़ा है। बिल्कुल, एकदम, मतलब इवन मैं DME, हमारे पास कोई काम नहीं है दिन में। आई थिंक आधे घंटे का भी काम नहीं होता मेरा, तो मतलब नहीं के बराबर ही है। सर भी हफ्ते में 1 या 1.5 घंटे। But the reason they are there is because they are the pillars. Because they are there, I don't have to look. If they are not there, I will be stressed. So Very even nice. though they are free, it's a huge mental, it's like the pillar of the organization. You can't Psych- shake it. वो है कि ये देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, she sees all the अभी checklists every day. ऐसा नहीं है, हर एक चेकलिस्ट, ये सुपर ऑडिटर है उसकी। वो तो उसका MIS निकाल के देख लेती होंगी ना? नहीं MIS नहीं सर, नहीं सर, ये हमारे यहाँ चेकलिस्ट का एक, इन्होंने AK-47, इन्होंने AK-47 एक चेक, मेरे ही नाम पे इन्होंने एक चेकलिस्ट चालू कर दिया AK-47, जहां पे जो आदमी जो नहीं कर रहा है वो 86 चेकलिस्ट में वहां पे आ जाता है कि किसने क्या नहीं किया। एंड एनीवे सर, now the pratha in the factory has become that even the general manager doesn't want to talk to me directly. He will go through her to talk to me or to seek an appointment to meet me. Very, So एक that's become the culture of the अभी organization. पहले तो कोई भी घुस आता था मेरे चेम्बर में। अभी हम लोग इस शीट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सर, जिसमें कि हमको एक ही लुक में पूरी पेंडिंग दिख जाएगी। तो वो मैं शायद अभी वो ठीक नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, वो सारा हम चेंज कर रहे हैं। कह रहे हो कि आप एक शीट में सब कुछ देख के पता लग जाता है कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ? जी सर, वो एक्चुअली ना वो लोड होने में काफी इसमें टाइम लग जाएगा, आई थिंक 5 मिनट तो ये लगे। दिखाना चाहते थे, मैंने कहा था मत दिखाना यार, लोग यहाँ डर बहुत जाएंगे। वैसा डेटा ना It's पूरी their फैक्ट्री amygdala will get सारी hijacked, एक sir. ही It's जगह है। not worth. तो उसमें हमको दिख जाता है कि कौन सा स्टेप किस में डिले हुआ है, कितनी देर डिले हुआ है, वो सारी चीजें एक ही लुक में आ जाता है। आपको एक शीट पे दिख जाता है क्या क्या ठीक नहीं चल रहा है, तो बस एक हाँ वो जी, शीट लेते हैं तो सब समझ लो। जी सर। वेरी गुड, ओके, लेट्स कैरी ऑन। So sir, let me explain a little
how the implementation of this course has impacted my factory and my people. मेरे 30 साल पुराने माली हैं बाबूराम जी, उन्होंने हमारा कल्चर स्टेटमेंट फॉर्म किया, गर्व से आगे बढ़ो, और ये स्लोगन हमारी वेबसाइट तक पे है. All the people in the organization have become one, all the departments are integrated, everybody including my senior staff is now coming on time. सब लोग अपना KRA जानते हैं और सारे स्टेप्स में सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व है. All we have automated all the systems and everyone has their set jobs and they are all supremely tied up. मीनू मेरी EA टोटली फ्री हो चुकी है. पिछले 12 EMO से एक बार भी नहीं, कोई स्कोर ही नहीं आया है इसका. और बल्कि इसका एक असिस्टेंट है, छोटा सा लड़का है, उसने इसका सारा काम टेक ओवर कर दिया. तो शी इज नाउ हेल्पिंग मी एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट माय अदर बिजनेसेस. Planning is no more for this week or next month. For production, sales and raw material, planning is now for a minimum of 60 days and it is closely monitored by my people. मैं सिर्फ 60 मिनट बैठता हूँ पूरे हफ्ते में मार्केटिंग और HR पे. उसके अलावा रियली में मेरे पास कोई काम नहीं है. मैं परचेजेस बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ क्योंकि सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है. आई एम नॉट अफ्रेड टू लूज आउट ऑन एनीवन. कोई भी आता है मैं कहता हूँ भैया जाना है तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने अपने आप को डिस्पेंसेबल कर लिया है इस FMS और चेकलिस्ट के द्वारा. मेरे जनरल मैनेजर साहब कोरोना से बिल्कुल पहले, इन द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, ही क्विट. ही सेड मुझे जाना है और आज ही जाना है. चले गए, कोई बात नहीं है. मेरे 40,000 पैरामीटर्स नोट हो रहे थे हर रोज. मेरे सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में 300 हेल्थ टिकट्स इशू हो रही थी. और मेरा जो जनरल मैनेजर कमर्शियल है, उन्होंने पूरा प्लांट विदाउट बीइंग प्रोडक्शन गाय, पूरा प्लांट उन्होंने जूनियर लोगों के साथ 6 महीने के लिए संभाला जब तक नया आदमी नहीं ज्वाइन किया. मेरा सारा स्टाफ कोरोना से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था क्योंकि वी हैड स्विच्ड ओवर टू गूगल शीट्स एंड जूम मीटिंग्स बाय 2019 जून एंड माय एंटायर MDO वाज वर्किंग आउट ऑफ होम 3 days a week. मैंने अपना ऑफिस बंद कर दिया दिल्ली में, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग था, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ बैठ के बाबूगिरी करने की. अब मेरे पास ये कमरा है जिसमें मैं अभी हूँ, यहीं से मैं अपना सारा बिजनेस कंडक्ट करता हूँ. जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अपने घर से ही काम करता हूँ. मैं पिछले 5 सालों में शायद स्कूल में 2 दिन रहा हूँ वेदांत के साथ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट गो टू एनी ऑफिस बिकॉज ऑल दिस सूट बूट आई डोंट वेयर एनी मोर. आई डोंट एंजॉय इट, इट्स टू स्टिफ फॉर मी. EM मीटिंग्स एंड MIS कोर्स हमने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है एंड एवरीवन वर्क्स टू फुलफिल देयर टास्क्स ऑन टाइम. ऑन द पर्सनल फ्रंट व्हिच आई पर्सनली वांट टू शेयर विथ यू, कि मैं बहुत सारे वेकेशंस पिछले 4 सालों में ले चुका हूँ. 6 से 10 दिन का मेरा एक वेकेशन होता है और मैं हर महीने वेकेशन में जाता हूँ. इस महीने में अभी आया हूँ, अभी जा रहा हूँ और मंथ एंड में अपने पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर्स मनाने के लिए जा रहा हूँ. तो कभी कभी महीने में 2 वेकेशन भी हो जाते हैं. मेरा हर वेकेशन 4 से 10 दिन होता है और मैं हर वेकेशन का फोटो सर और अपर्णा मैम को भेजता हूँ कि आ जाओ, आप लोग हॉलीडे पे क्यों नहीं आते हो. आई हैव नॉट मिस्ड अ डे ऑफ वर्कआउट. मेरे सारे सबसे पुराने जो स्कूल के दोस्त खो गए थे, 10 साल बाद में उनसे रीयूनाइट किया. आई एम अ मेंबर ऑफ EO गुड़गांव एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन which is a very prestigious business group. During the lockdown period मैंने खुद खूब सारे मैनिफेस्टेशन के क्लासेस कंडक्ट किए. 2000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को मैंने कोच किया है मैनिफेस्टेशन पर. मैंने एक एम्प्लॉय एम्पावरमेंट प्रोग्राम नोन एज कॉफी विद अंशुमन मैंने लॉन्च किया था अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करने के लिए. आई हैव ऑल्सो बिकम अ होलिस्टिक लाइफ कोच अंडर मिस्टर एलन कोहन who wrote Chicken Soup for My Soul. As you know, I have already become a full-time options trader, which has become a parallel business for my family. मैं जिस भी गुरुजी के कोर्स में जाता हूँ वो कहते हैं यार एक बार आके टेस्टिमोनियल जरूर दे दो. मेरा कहने का ये मतलब है कि this once aspiring golfer is giving a business related speech in front of accomplished entrepreneurs like yourself. What else could be a greater proof of this course? From becoming the black sheep of the family, I am now revered and treated with a lot of honor and respect everywhere I go, especially within my family. मेरे मम्मी पापा, मैं सेम घर में रहता हूँ उनसे, उन्हीं के घर में रहता हूँ, मगर हफ्तों मैं उनसे मिलता नहीं था और अब वो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंट्स बन गए. मेरे परिवार मुझे बहुत. हाँ सर. पहले क्या रिलेशन था उनके साथ?
सर मैं हफ्तों हफ्तों उनसे मिलता नहीं था। ऑब्वियसली सर, अगर आपका 34 साल का लड़का, उस टाइम ना 45 नाउ, आई वाज 35 देन, आपका 30-34 साल का लड़का अगर दिन रात केवल पार्टी कर रहा है, 5 दिन हफ्ते में पार्टी कर रहा है, पेज 3 वाला बंदा बन गया है, सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ घूम रहा है, 10 बजे मैं ऑफिस जाता था, 3 बजे मैं ऑफिस से निकल जाता था, क्या क्या इज्जत रहेगी सर फैमिली में? कोई भी क्या इज्जत करेगा आपको? और आज के डेट में कोई भी डिसीजन मेरे फैमिली में अगर लिया जाता है, बिजनेस या पर्सनल, मेरे बिना नहीं लिया जाता है। एट द एंड ऑफ दिस होल थिंग यू रियलाइज ओनली वन थिंग, कि सारी खुदाई एक तरफ और परिवार से जो इज्जत मिलता है वो एक तरफ। जो इज्जत मुझे मेरे छोटे भाई से मिलती है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। पापा ने सारा काम वेदांत और मेरे ऊपर छोड़ दिया है। वो गोल्फ खेलते हैं, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आने वाले हैं। मेरी मम्मी फुल टाइम हॉलिडे करती हैं, 6 महीने हॉलिडे पे रहती है, 6 महीने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करती है। कोई भी डिस्कशन हमारे फैमिली में पैसों के ऊपर लेके नहीं होता है, क्योंकि सर ने हमें एक बार बहुत अच्छा सा सिखा दिया था कि कर्म करो और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आई एम फीलिंग ब्लडी वाओ। मैं पहले अपने हॉलीडेज प्लान करता हूँ एंड आई वर्क इन बिटवीन माई ब्रेक्स। My greatest reason for success in this course has been my scheduling, but I think we are running out of time. Meenu, should we skip the scheduling this time? जी सर। ठीक है। बिजनेस रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मैंने कभी भी परवाह नहीं की बिजनेस रिजल्ट्स की, केवल अच्छा मीन सर एक सेकंड दिखा दे जल्दी से शेड्यूलिंग, एक दिखा दो भैया। आपके पास पड़ा हुआ है क्या कोई शेड्यूल? अभी तो सर 3-4 अब महीने शेड्यूल से। नहीं बनता। अरे कुछ भी, मैं स्पीच दे रहा हूं, तुम बीच में खोज के दिखाओ कोई शेड्यूल, पुराना वाला दिखा देना। द बिजनेस रिजल्ट्स मैंने कभी भी इसके बारे में परवाह नहीं किया। आई ओनली एक शेड्यूल छोड़ दो, रहने दो, अदर वो डिस्ट्रैक्ट होता है, आधे लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आधे वाले शेड्यूलिंग देख रहे हैं। चलिए ठीक है सर। सो आई ओनली वर्कड एट इम्प्लीमेंटिंग द कोर्स एंड दिस इज रियली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे इतना प्रॉफिट कमाया, कैसे टर्नओवर बढ़ा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 5 रुपए केजी में बिकता है, पानी 20 रुपए केजी में बिकता है। 3 नए प्लांट्स मुजफ्फरनगर में ही खुल गए, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सब जगह नए प्लांट्स खुल गए हैं, और उसके बावजूद मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बूम कर रहा है। जरा प्रॉफिट दिखा दो भैया हम सब। तो मैंने 2 कंपैरिजन बनाए, 2017-18 में मेरी क्या टर्नओवर थी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी था और एसेट का प्रोडक्शन क्या था कंपेयर टू 2016-17, और 2022-23 में मेरा टर्नओवर 42% से बढ़ गया। मेरी परसेंटेज प्रॉफिट 265% बढ़ी इसके पिछले वाले साल से। ये एक्चुअली 400% होना चाहिए। और मेरा एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि 120 टन का सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में आप 120 टन से ज्यादा चला ही नहीं सकते हो। मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आई कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दिस, यू नो। ठीक है, बंद कर दीजिए मीनू। और Meenakshi, please share my number with everybody over here and share your number also with everyone. मैं लास्टली एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद आरजे सर ने मुझे यहाँ प्रॉप बना के भेजा और बोला बेटा यही बोलना, मगर लेट मी टेल यू, in reality my relationship with my father used to be so bad that he wrote me off. I used to start partying on Wednesday till Sunday. I used to go to office 12 बजे और 3 बजे मैं निकलता था। इस बंद फैक्ट्री को जो मैंने 23 साल की उम्र में चालू किया था, मैं कंप्लीट इंटरेस्ट खो चुका था। और जब मैं फैक्ट्री जाता था तो मेरा मन ही नहीं करता था फैक्ट्री में बैठने का, क्योंकि मुझे सिस्टम्स क्या है, फैक्ट्री कैसे चल रहा है, किसी भी चीज का कोई आइडिया नहीं था। मेरा ऑफिस खुला रहता था और कोई भी मेरे ऑफिस के अंदर घुस सकता था। मेरा स्टाफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली सारे मजे कर रहे थे और दिन रात सिर्फ मैं टेंशन में जी रहा था। इंस्टेड ऑफ कैचिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, आई डाइवर्टेड माय अटेंशन टू पार्टिंग एंड टू गोल्फिंग। किसी ने हमें बिजनेस करना कभी नहीं सिखाया था, बस जैसे तैसे रगड़ के सीख रहे थे। कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि
कोई भी अच्छा आदमी मेरे फैक्ट्री में टिकता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ। ऐसा मन करता था कि मैं साला जॉब क्यों नहीं कर लेता हूँ। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैनेजर तक की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 5 बजे आके बोलता था बाबू काम नहीं हुआ। आई सेड नो प्रॉब्लम, आई एम सुपर हीरो, तू यहाँ रख के जा, कल सुबह तक मैं करके दूंगा। बॉस, if you can relate to any of the above symptoms, then the only solution to your problem is this course. हम सब सिम्टम को क्योर करने के लिए लगे रहते हैं और कॉज कोई भी क्योर नहीं करता। यहां पर ये आदमी पूरी तरह से अपने आप को अकाउंटेबल बनाते हैं टू मेक श्योर यू सक्सीड वन डे एंड स्टैंड हियर एंड टेल दिस क्लास अबाउट योर सक्सेसेस द वे अंशुमन, द aspiring national level golfer, wanted to say. Lastly, he says, start is the biggest stop. So please start now. Do not stop, guys. मैं इतना कन्विंस्ड हूं इस कोर्स से कि हर इंडियन एंटरप्रेन्योर को ये कोर्स करना चाहिए कि मैं अपने ऊपर विलिंगली एक फाइनेंशियल फाइन लगाने के लिए तैयार हूं अगर आप में से हर एक आदमी को इसमें सक्सेस नहीं मिला तो। जस्ट गो फॉर इट। Coming from one human being to another, I request you all take this leap of faith, because me and 6,000 alumni are there to hold your hands. Lastly, I would like to leave you with my best practices. फिर से मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। जो भी आरजे सर बोलते हैं वो गॉस्पेल ट्रूथ है। मैंने शेड्यूलिंग 4 AM आउट ऑफ ऑफिस, EA, EM, और हमने शायद पिछले 4 साल में, मीनाक्षी अभी लेटेस्ट 1 EM मिस हुआ है, तो 4 ही मिस हुआ है ना हम लोगों का? जी नहीं सर, वो मिस नहीं किया था हमने, वो आगे कर लिया था हमने। तो देन प्रोबेबली वी हैव मिस्ड 3 EM स्टिल नाउ। और खाली 3 महीने कोरोना में जब फैक्ट्री बिल्कुल बंद थी तो हमने EM नहीं किया, बट मैं रेगुलरली लोगों से मिल रहा था। मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन क्लासेस लिए सर के, जो 95% मेरा गेम चेंजर था। ये कोर्स, ये खेतान केमिकल्स मेरे चाचा जी की है। ये कोर्स इस देश का भागवत गीता है, बिजनेस का भागवत गीता है। ये कोर्स बिजनेस का भागवत गीता है, और स्टाफ इंटीग्रेशन सबसे जरूरी चीज है। लास्टली, मैं बस एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि पैसा हमने कमाया इस कोर्स से। जो हमने कमाया, हमने अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम कमाया, अच्छा रिस्पेक्ट कमाया अपने फैमिली के अंदर। मगर वो राज कपूर जी का एक गाना है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जीवन के समथिंग में, जीवन के होठों पर देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और राहुल जैन सर ने मुझे इस देश का सबसे ह्यूमन एंटरप्रेन्योर बनाया है, और मैं जो इस देश में छोड़ के जाऊंगा अपने छोटे से फैक्ट्री में, अपने छोटे से कस्बे में, नो एंटरप्रेन्योर कैन डू दैट। सो सर, आपको सत धन्यवाद फॉर really making Raj Kapoor song true in my life, and I'm going to prove it to you. The most humane entrepreneur he has made me. I can feel the emotions of all my people within me. I'm going to show you a small video of the 32 or 34 parties that I did with my people, and I'd just like to leave you with that. Meenakshi, please. Sachin. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। Very nice. Meenu, just share your number. Thank you, sir. Thank you for everything, sir. Thank मैं you, तो thank आपको कितना भी थैंक यू बोलूं, it is less. So we'll take leave of you, sir. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, can we thank Anshuman for coming and joining us here? Thank you. Very much, Anshuman ji. Inspiring. Thank you so much, Anshuman. Thank you, Meenakshi. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, Anshuman ji. Thank you so much. Please get in touch with us if you need any guidance. मीनू, अपना और मेरा नंबर please Thank you share so करें. much. Anshuman ji, I think very. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much, एक सवाल sir. पूछ सकता हूँ केदान जी, 2 सवाल पूछना है आपसे। हाँ शेट्टी साहब। अच्छा, जस्ट एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलेंट, ब्रिलियंट एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग लुकिंग एट द एनर्जी। just 2 questions because I am also from the chemical industry. Sure, sir. And first is how many employees you have, Ketan sir? Sir, 85. And could you do that EM meetings 3 minutes ka personally, or you used to do it online? Sir, initially we did it personally, then Corona hit, then everybody started doing it online, and all my staff also preferred it online. But we try to do it once in 4-5 months personally when I'm over there, but it's not helpful to do it personally because I'm So it already doesn't so make a difference. integrated. I'm already so integrated with them. And sir, the thing is that they say साहब हमारा क्यों 5 मिनट खोटी कर रहे हैं, हमें नहीं आके आपसे मिलना, हमें एक काम करने दो। जिस लेवल पे आप लोग हो, you have to do it personally. Clear? ये मत करो। आप इनको देख रहे हो 3 कोर्स साल के कोर्स के 3 साल बाद। सर 4 साल, सर 4 साल। Okay, one more question, Ketan ji. ये just आप starting में जब before you did the course and implemented the learnings, right? You had a disconnect with the team and the work methodology, etc., etc. तो आप एक course implement करते करते, did you have to change the entire team, or the same team से आपने पूरे करिश्मा देखा? Great question, sir. Great question, sir. When my general manager told me कि खेतान साहब क्यों लॉन्च कर रहे हैं, हम इसको जुगाड़ पे चला तो रहा है, I said आज से फैक्ट्री बंद कर दो, ये कोर्स तो अब मैं कॉम्प्लीमेंट करके रहूंगा। Sir, only Sudhanshu left me, who was my mechanical engineer,
That's all. In the last 4 years, after 2019, yes, people have gone, but after 2020 December, people have gone after I implemented the course. But in the duration of implementing the course, I did not remove even one person. I hired 32 new people as PCs and this and that, of which we have downsized it. We've removed about 20 of those people who were part of that team, which I had got to implement this. But I did not need to remove even one person. Everybody loves the system. And they are now making their own FMSs and checklists, which is why I'm not involved anymore. And even after hiring more people, first year, how much did your profits go up by? So the first year it went up by 240% or so. After that, it kept going up, and that's it. So I mean, 250% profit बढ़ा, sir. Obviously, sir, सारे leakages चले गए ना. जो प्लांट 70-80 टन पे चलती थी, अब 120 टन पे चलने लगी. जो लोग टाइम वेस्ट करते थे, जो लोडिंग लेबर डिसाइड करती थी कि आज माल किसको देना, भैया 30 साल पुरानी फैक्ट्री है, राजा रजवाड़ों वाला फैक्ट्री है, तो आप तो जानते हैं कैसे चलता है इन राजाओं का फैक्ट्री. So obviously. How long it took for the complete implementation, Mr. Khaitan, the entire implementation in your plant? 2 years? नहीं सर, 2 years. हमारा नहीं 2 years नहीं, हमारा I think 7-8 months में कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया था. मुझे आइडिया नहीं है, जो मुझे याद है वो एटलीस्ट 2 years है भैया. लगता है टाइम इम्प्लीमेंट 7-8 महीने में कर लिया आपने, तो वेरी गुड सर. एक्चुअली आई एम हाँ, कोर्स करने के बाद साल भर. बट सर हाँ, कोर्स करने के बाद साल भर, हम इंक्लूडिंग द कोर्स आई सेड 2 years. हाँ, बट 7-8-9 months. सुनो, आपने शुरू 6 महीने में किया काम करना, उससे पहले आप काम ही नहीं कर रहे थे. तो हाँ, उसके पहले तो नहीं शुरू. सर समझ ही नहीं आ रहा था इतना, मतलब आज से मैं आई एम डिफरेंट ना सर. यू नो माय बैकग्राउंड, पार्टीड फॉर 10 years, हैड अ सुपर टाइम, डिडंट वर्क फॉर 10 years, गोल्फ फॉर 10 years. मैं जब आया वहां पे तो मुझे पता ही नहीं था कहाँ आ गया भैया मैं. वो तो वेदांत के रिकमेंडेशन पे मैं आया था आपके पास. इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि सर, जब आपको आप यू आर नॉट टेक्नो फ्रीक एंड आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था, तो उसके बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम, तो ये आपका ब्रेन चाइल्ड था कि सर की इंस्पिरेशन थी कि आपकी टीम थी, कि मतलब ये इतने इस तरीके के सिस्टम्स कैसे बने? जस्ट मैं आपसे थोड़ा सा आपके सर, मैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चलाता हूँ, मुझे मोटा मोटा प्रोसेस आता है. मगर आप अगर मुझसे पूछे कि ये लीवर क्या काम करता है, मुझे नहीं आता. मैं उन लोगों को चलाता हूं जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चलाते हैं. दैट इज नॉट माय जॉब. माय जॉब इज टू रन दोज पीपल. सो आई नो एक्सेल, आई एम वेरी गुड एट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट 2007 आई यूज. 2010 भी मुझे नहीं यूज करना आता. सब जगह मैंने 2007 लगा के पूरी चीज मैंने एक्सेल पे छापी और सचिन को बोला, भाई इसको अब तू इस गूगल चीज पे, गूगल ड्राइव पे छाप. और उसने छाप दिया. मैंने उसको फिर चेक किया, जहां मुझे चेंज करना था मैंने चेंज किया, उसने चेंज किया. और एक छोटा सा परमिशन अगर आप हमको दे पाए कि कभी अगर ऐसा लगे कि कोई सिस्टम जैसे आपके हमने देखे और किसी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें, तो क्या हम आप मीनाक्षी जी को या किसी को कांटेक्ट करके उनसे जस्ट 5 minutes 10 minutes करके कुछ पता है सर मुझे गम क्या है? हर बैच में this question gets asked. In every batch I request the people, please call me, call Meenu, please ask us questions, and nobody does it, sir. Not even 1% of the class does it. That's wonderful. पर मेरे कॉल आएंगे सर, आप देखिएगा. It will be my honor and my pleasure. I have put can we have your number? ये नंबर I आया. have put it. मीनाक्षी प्लीज डाल दो ना यार ग्रुप में मेरा और तुम्हारा नंबर. फिर से डाल दो भैया, फिर से डाल दो, 2-3 बार ही डाल दो. सर आपके के लिए, आपकी परमिशन के लिए थैंक यू वेरी मच. एंड आई डेफिनेटली. अरे शंकर जी, मैं आपकी उम्र से बहुत कम हूँ सर, प्लीज. बहुत छोटा आदमी हूँ, ऐसे मत बोलिए. I need your blessings to go ahead in life, my entire team. Please don't say like that. तो आपसे इतना इंस्पायर हुए हैं कि हम आपका 10% भी कर पाए, तो मतलब हम लोग खुद को बहुत लकी और बहुत ज्यादा. बताओ अंशुमन, एक बात बताओ कि आपके बैच में जो लोग थे उनके भी ऑटो पायलट हो गए थे, जो अलग अलग किस्म की इंडस्ट्री, अलग अलग चीजें थे. अंशुमन आपके भाई थे, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लो एक बार. सॉरी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको एक बार. Today people are running after Vedant
माय यंगर ब्रदर कि यार तुमने ये क्या इम्प्लीमेंट किया है, तुमने 225 FMSs कैसे इम्प्लीमेंट कर लिया, कितने प्रोसेसेस लगा चुके हो यार एक स्कूल में तुम। एंड ही इज गेटिंग फ्रेंचाइजीज एंड दिस एंड दैट, सो मेनी पीपल आर कमिंग टू हिम कि यार पुट दीज सिस्टम्स इन आवर स्कूल प्लीज। ही इज सेइंग हाउ कैन आई सेल राहुल जैन जी systems, that's not my job, but sir your systems are applicable to a साड़ी वाला। आज मैं रजनीश के साथ था ना सुबह, 5 माले का साड़ी का दुकान है उसका वहां पे चांदनी चौक में, वहीं पे हम बैठ के कचौड़ी खा रहे थे। इट इज इम्प्लीमेंटेबल इन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। द खन्ना ब्रदर्स, वो इंश्योरेंस एजेंट है सौरभ खन्ना, वो इम्प्लीमेंट किया। दिस माय टाइगर ग्रुप से सरीना इज एन आर्किटेक्ट, शी हैज इम्प्लीमेंटेड इट। I have implemented a sulfuric acid plant, and you know my brother is a complete techno freak. He's from Michigan Ann Arbor. He's a graduate from there. I didn't even complete my graduation. I ran away from 2 colleges. So totally diverse people from 2 totally diverse fields. One non-graduate, one my younger brother whose formulations he was teaching Sanidhya how to do the formulations in sir's course. मतलब 2 इतने डाइवर्स फील्ड के इतने डाइवर्स लोग हमारे फैक्ट्री में हम अंग्रेजी में बात नहीं करते और कभी कभी कलरफुल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। मुझे स्कूल में एंट्री नहीं है क्योंकि भाई आप तो इंडस्ट्री के बंदे हो, आप स्कूल में आओगे तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। आई मीन 2 people from such diverse backgrounds, 2 people from such diverse industries have chapoed such a beautiful course and made such a hit out of it. And you know guys, sir, please don't mind if I say one thing. You know, there's also this sir's course that he's doing is actually not a risk at all, because after 1 or 2 months you can get your money back if you don't like the course. So आपका ये जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा अपने ऊपर, तो इसको करिए सर, इसको ऐसा मत करिए कि ना करिए। going to do yourself a disservice sir, at least do it for your children. Great. अब इसको I think we'll close the question answer thing. Thank you. एक सर मिनट एक क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए सर नरेंद्र जी को। सर नरेंद्र, सर आपने ये सारा चीज ऑटो पायलट कर दिया, हम लोग राहुल सर का देख रहे थे सर, ये और डीएम, इसमें मैनेजर का क्या रोल रहता है या कम हो जाता है? मैनेजर का क्या रोल रहता है? मतलब मैनेजर मालिक बन जाता है बाबा, क्योंकि मालिक तो हट ही जाता है। परम सत्य बोल रहे हैं आपसे। ये मीनू क्या है? मीनू ये थी ना मेरी, अब क्या हो गई है? चौड़े चौड़े में बोलती है मैं तो कुछ नहीं करती। उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? मैं तो नहीं उखाड़ सकता हूँ। अरे चौड़े में मेरे मुंह पे बोल रही है 250 लोग के सामने मैं कुछ ना करती। मैंने कुछ किया? मैंने बोला एंजॉय करो यार, क्योंकि तुम हट जाओगी तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। So let me share that. नरेंद्र, जो जितने मैनेजर होते हैं वो मैनेजर से मैनेजमेंट बन जाते हैं, मैनेजर से मैनेजमेंट बन जाते हैं, वो कंपनी चलाने लगते हैं। So we'll do that. अभी करेंगे उस पे। Okay, I think let's I think Anshuman, you have to go also, and it's getting late also. So thank you so much, Anshuman. Thank you so much for joining us, and it is really nice to hear you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, Anshuman. Thank you so much. Thank you, Anshuman ji. Thank you, Anshuman. Thank you so much for your. Thank you, thanks a lot. Thank you, Anshuman ji. इंस्पायर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय। Thank you.